हेलो यूट्यूबर, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1B। आशा करते हैं कि आपको वो पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, press bell icon for latest updates and click like button to motivate us and share this video with everyone. So let's begin our video. So students, let's begin with 1B. Okay. So first question arises, without actual division, find which of the following rational numbers are terminating decimals. So our first part is 13 upon 80. 13 upon 80. We have to take prime factor of the denominator as we have taken as a rough work. You can see also why we have taken. If prime factor of denominator comes with 2 and 5, then it is terminating. Other than 2 and 5, it is non-terminating. So by taking the prime factor of 80, you very well know that you have got 2 and 5. So you know that it is terminating, right? Like this, you will do all the parts given over here. We are showing you as all the parts of question number 1 in the short, so you can pause the video and you can see it. In the same way, you can see all the parts, and you know wherever 2 and 5 will be not there, then it is non-terminating, as we have explained you earlier also. Now let's move to question number 2. Convert each of the following into a decimal. It is very easy. You can do in 2 minutes. First part is 5 upon 8. So let's see the solution. So our first part is 5 upon 8. To make it in decimal form, we have to divide denominator by numerator. So here we have divide, as you can see. So the answer we have got 0.625. Dividing 8 by 5, we got 0 and decimal portion, and we got the answer 0.625. Like this, you can solve all other parts which are given in this question number 2. We will give you smart. So as you can see, I have given in short form to you all. So second, third and all I will give you later on. Now let's move to question number 3. It is very easy. You can do in 2 minutes, you know. Express each of the following as a fraction in simplest form. बेटा ये चुटकी का काम है. So first part is ready. 0.3 and आपको शायद दिख रहा होगा 3 के ऊपर बार लग गया है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने बार नहीं लगाया, आपने कुछ भी किया होगा, आपका पूरा सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा, राइट? सो लेट्स सी The solution. Let x equal to 0.3. As you can see the question, we have written, we will take it as x, right? Then you can do like that. Okay student, you can say let x 0.3 bar means question number 3 says 0.3 bar. 0.3 bar means 3 is repeating. Okay, so let x as a 0.3 bar. Okay, x let x equal to 0.3 bar. आप देख रहे हैं 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 के ऊपर बार लगा हुआ है. जैसे कि आप फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3 बार. 3 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है. अच्छा, अगर हमें 3 में आगे मूव करना है तो हम then x is equal to 0.33. you can see 0.3 बार है. बार मीन्स क्या होता है? वो नंबर जिसके ऊपर बार लगा है वो रिपीट हो रहा है. ये चीज़ ध्यान में रखिए. बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता, उसको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सोच के लेते हैं, इसीलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं ये चीज़. ओके, तो फिर दूसरी चीज़
10x, यहाँ पर आप सोचेंगे 10x कहाँ से आ गया, x इज इक्वल टू 0.3 बार और उसके बाद हमने लिखा है 10x। 3 को आगे लाने के लिए हमने 10x लिखा है, जितनी आप जैसे एक जीरो और बढ़ाएंगे तो एक और 3 आगे आ जाएगा, मीन्स 3 के ऊपर एक और 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इंक्रीज करते जाएंगे तो 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, जिस पर हिसाब जीरो से जैसे जैसे जीरो होंगे वैसे वैसे नंबर और डिजिट बढ़ते जाएंगे। जैसे 3 जीरो है तो 3 डिजिट डेसिमल के आगे आ जाएंगे। ये प्रोसेस आपको क्लास 7th और 8th से पहले आपको 5th और 6th में पढ़ा दिया गया होगा। आई एम डैम श्योर कि आपको ये चीज़ रिमेंबर होगी। दूसरी चीज़ बोली गई, देखिए x इज इक्वल टू 0.3 बार, ये 3 बारी के तरीके से माना जाता है। या तो आप 3 बार लिखिए या तो आप इसको रिपीटिशन फॉर्म में लिखिए कि बढ़ता ही चला जा रहा है, इन्फिनाइट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एज ए 0.3 बार लेंगे। x इज इक्वल टू 0.3 बार, जैसे ही हमने 10x लिखा वैसे ही एक डिजिट आगे आ गई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे जैसे ज़ीरोज़ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिजिट्स भी बढ़ते जाएंगे डेसिमल के आगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन, इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं और दूसरी वाली 10x वाली को हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। जब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमें क्या मिलेगा, देखिए 10x माइनस x क्या हुआ, 9x। और ये देखिए पूरा 3 बार वाला दोनों माइनस हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। और 3 माइनस, और देखिए 10 माइनस 1 मीन्स x है, इन दोनों को माइनस किया, 9x आया हमारा। ये मैं आपको रफ वर्क करके दिखा रही हूँ। और ये इक्वल के बाद जो चीज़ दी गई है वो दिखा रही हूँ मैं आपको, 3 बार के तरीके से लिख रही हूँ, यहाँ पर 0 रहेगा। हम जैसे कि आप जानते हैं सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करें, इसलिए जो बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा होगा उसके नीचे, ठीक है। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, 0.3 माइनस 0 3 आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, इसीलिए हमने 3 लिख दिया है। 3 हमने लिखा यहाँ पर। और दूसरी चीज़ 9x और 3, मतलब 9x इक्वल टू 3 आ गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 3/9, अब इन दोनों को कट करेंगे, 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका ब्रीफ सोल्यूशन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। Now you can see as the same all the other parts. I'll show you in short. Easy. क्वेश्चन नंबर 5 तक की तो आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आप, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ये थोड़ी परेशानी आ सकती है। सो लेट्स सी व्हाट द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से 0.17 बार। ओके, लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Solution number 6 as is in front of you. Okay, let's see what the question is. 0.17 बार। अब आप देख रहे हैं कि दोनों नंबर पे बार नहीं है, केवल एक नंबर पे ही बार है। तो आप सोचेंगे ये डिफ़िकल्टी आ रही होगी, कि कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको लेट x कर लीजिए, इसको क्या कर लिए, इसको x मान लीजिए, और इसको आप लोग, अब जो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, मीन्स 10x कर देंगे, तो एक डिजिट आगे आ जाएगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह सिंपल हो गया। अब 10x को फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 100x। अब आप सोचोगे 100x किस लिए, 100x इसलिए हमें एक और डिजिट आगे बढ़ानी है, क्योंकि एक 0 बढ़ा है तो एक डिजिट और बढ़ेगी। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 7 बार। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है फर्स्ट, और ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स 100x माइनस 10x
वो हमारा क्या आ जाएगा 90x, और इधर 7 बार 0 आ जाएगा 0.17 माइनस 1 हमारा आ जाएगा 16. एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन. अब देखिए x इज इक्वल टू 16/90. ओके, और ये जो है now you can see it is cutting by dividing by both of them is dividing by 2. 2 8 is 16 and 245 is 90. So our direct answer comes is 8/45. सिंपल क्वेश्चन. अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आगे के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. चलिए हम एक आपको छोटा Second part is also easy as same like first one. You can see. so simple. मैंने पता है आप लोगों को 6 पार्ट इसलिए पहले समझा दिया क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इजी है, बट ये सीधी थर्ड पार्ट, तो आपका जो 6 पार्ट में थोड़ी कंफ्यूजन रह गई होगी वो भी क्लियर हो जाएगी. तो उसको कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं. तो लेट्स सी द थर्ड पार्ट. व्हाट डिड द थर्ड पार्ट से? थर्ड पार्ट से 0.34 बार मीन्स हमारे 34 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है. यू कैन सी बार लगा हुआ है मीन्स इसका रेपिटेशन हो रहा है, ये बार रिपीट हो रहा है. ओके, सो यू कैन सी लेट x इक्वल टू हर क्वेश्चन में हम लेट x कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को. लेट x इक्वल टू 0.34 बार. ठीक है, अब आप जैसे देख रहे हैं कि 34 पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, तो पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है तो इन दोनों को साथ में हमें आगे लाना होगा. किसी एक डिजिट को हम आगे नहीं ला सकते हैं. पेयरिंग वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, सी अगर 2 डिजिट ला रहे हैं मीन्स 2 0 बढ़ेंगे. 100x हो जाएगा. 100x इज इक्वल टू 34.34 बार. आपको मालूम है रेपिटेशन हो रहा है मीन्स हम इसको 34 बार ही कहेंगे. तो देखिए x इज इक्वल टू 0.34 बार और 100x इज इक्वल टू 34.34 बार. अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे. सो सी 100x माइनस x 99x बिकॉज 1 इज देयर 99x and it is equal to 1x is equal to 0.34 bar and 100x is equal to 34.34 bar. तो हम इस इक्वेशन को पहले रखेंगे फिर इस इक्वेशन को रखेंगे. आप बड़ा छोटा देख सकते हैं. इन दोनों को हमें माइनस करना है. हमने 100 और 1x को माइनस कर लिया है, 99x आ गया है. अब इन दोनों को माइनस करेंगे, ये 0 आ जाएगा. 0.34 डायरेक्टली हमारा उत्तर आएगा. तो 99x इज इक्वल टू 34, x इज इक्वल टू 34/99. आप देख सकते हैं कि 34 और 99 किसी भी टेबल से कट नहीं रहे हैं. सो दिस वुड बी द एग्जैक्ट आंसर. आज हम लोग फिर से आपको सारे पार्ट्स दिखा रहे हैं. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी पार्ट में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए. और आई थिंक सो हम लोग ने इतना अपनी तरफ से तो मैं 100% मैंने लगा दिया है. आई थिंक सो आपको एकदम क्लियरली हो गया होगा. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपके सामने कमेंट सेक्शन रेडी है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कुछ ना समझ में आया हो तो. यू कैन सी ऑल द पार्ट्स गिवन ओवर हियर. You can pause the video and you can see and please देखिए कायदे से, बहुत ही important है ये. Every natural number is a whole number. फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर है.
पहला पार्ट ये कहता है कि सारे नेचुरल नंबर जो है हमारे होल नंबर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फैमिली बताना चाहूँगी रियल नंबर की एक फैमिली है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो लेट्स सी, बहुत ही ब्रॉडली इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यह आपके फर्दर क्लासेस में भी बहुत काम आएगा। सो सी, सबसे पहले जो आया था वो था नेचुरल नंबर। यू कैन से यस, नेचुरल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर्स यू ऑल नो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक। उसके बाद हमारा आया होल नंबर, मीन्स नेचुरल नंबर के बाद जो पीढ़ी आई थी उसका नाम था होल नंबर। होल नंबर में क्या होगा, ज़ीरो का एडिशन हो गया हमारे 1 2 वाली सीरीज़ में, 1 2 3 4 सीरीज़ में ज़ीरो आगे एडअप हो गया, ओके। और फर्दर ऑन एंड नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आया। होल नंबर के बाद हमारा आया इंटीजर। इंटीजर से आप सब बहुत अच्छे से वो होंगे, मतलब फैमिलियर होंगे, क्योंकि ये टर्म आप लोग फर्दर क्लासेस में बहुत क्लोजली पढ़ते आ रहे हैं। सो लेट्स सी, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में हम पॉजिटिव नंबर्स को रख लेते हैं और नेगेटिव नंबर्स को रख लेते हैं। आप जैसे नंबर लाइंस में देख सकते हैं, हमारे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और हमारे लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं, और सेंटर में हमारे ज़ीरो होता है। आप नंबर लाइन से बहुत अच्छे से वाकियात होंगे, फैमिलियर होंगे, बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे कि ये मतलब कि पहले नेचुरल नंबर में हमारा ज़ीरो नहीं ऐड था, 1 2 3 4 था। उसके बाद होल नंबर पे ज़ीरो ऐड हो गया, और इंटीजर्स में हमारा नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स आने लगे, मीन्स -1 -2 -1 0 1 2 ये सब आने लगा। तो आपको आई थिंक सो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो सबसे पहले कौन आया, नेचुरल नंबर, फिर आया होल नंबर, फिर आया इंटीजर, और उसके बाद जो हमारी फैमिली में आया है वो है, फिर इंटीजर से दो लोग और आए, वो आए हैं रेशनल नंबर और रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दो आए, ठीक है। इस बार दो लोग आए हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, यू कैन से टर्मिनेटिंग, और इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, मीन्स √2 √3 ये सब नंबर, √5, दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज इरेशनल एंड रेशनल। के बारे में तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, व्हाट आर रेशनल नंबर। और ये सब इन दोनों से पैदा हुआ रियल नंबर, मीन्स ये पूरा किसमें आता है, रियल नंबर। ये लास्ट की फैमिली को, इस पूरी फैमिली को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। सबसे पहले मैथ्स की दुनिया में कौन आया, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, फिर इंटीजर्स ने दो लोगों को और जन्म दिया, वो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर और इरेशनल से हमारा जुड़ के बना है रियल नंबर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रियल नंबर के अंदर ये सब है, रेशनल और इरेशनल के अंदर ये तीनों हैं, इंटीजर्स के अंदर ये दोनों हैं, होल नंबर के अंदर यही है केवल, और नेचुरल नंबर के अंदर कोई नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़े हैं, ओके। सो लेट्स सी, सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। येस, इट इज़ राइट। होल नंबर में 1 2 3 4 5 6 आता है, बस इसमें ज़ीरो एडअप हुआ है, मीन्स ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। तो बच्चों इसका आंसर बताइए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ऐसा है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं, नेचुरल नंबर में ज़ीरो एडअप नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफिनाइट नंबर की सीरीज़ है, पर इसमें ज़ीरो एडअप नहीं है, इसलिए नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते, मतलब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, ओके। सो बच्चों इसका आंसर बताइए, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? फॉल्स।
सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब बोला गया है कि सारे इंटीजर्स के रेशनल नंबर होते हैं। येस इट इज राइट, सारे इंटीजर्स किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं? रेशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो बच्चों इस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? ट्रू की फॉल्स? ट्रू। गुड बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब बोला गया है कि सारे रेशनल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? नहीं, सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर में इंटीजर्स नहीं आए थे। ओके, और रेशनल नंबर मीन्स P/Q फॉर्म नहीं आया था होल नंबर में, इसलिए बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। कि सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है? ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रिपीटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। रिपीटिंग डेसिमल मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मीन्स all repeating numbers are terminating decimal, so ये रेशनल नंबर होते हैं? ट्रू। गुड बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज का, वो है 0 इज़ आ रेशनल नंबर। ये मैंने आपको पहली ही वीडियोस में कंफर्म कर दिया था कि 0 एक रेशनल नंबर है। अगर आपको उस वीडियो में 0 इज़ अ रेशनल नंबर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट्स में आपको एक नई वीडियो अपलोड करके बताऊंगी कि 0 कैसे रेशनल नंबर है। सो 0 इज़ अ रेशनल नंबर बच्चों? ट्रू। गुड। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और पिछली वीडियोस में भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और भी अलग क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो प्लीज़ उसको कंफर्म कर लीजिए, okay, and please subscribe our channel and press bell icon, it must important. Thank you, and please like and share this video.